डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज मैं आपके लिए तीसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेल की। ये वीडियो क्लास 8 और 9 दोनों के लिए बनाया गया है, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है ये। इसको मैं आपको दो पार्ट में लेकर आऊँगा। पहला पार्ट आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और दूसरा पार्ट प्रोसेस में है, जल्दी ही वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर ऑल हु लाइक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इससे पहले क्लास 6 और 7 के लिए एक फर्स्ट लेसन का वीडियो आपके लिए लाया गया था, जिसमें टॉपिक था 6 के लिए टॉपिक था आवर एनवायरनमेंट और 7 के लिए था न्यूट्रिशन इन प्लांट। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये कॉमन चैप्टर है क्लास 8 और 9 का। 9 को विशेष तौर पे ख्याल में रख के बनाया गया है ये वीडियो, लेकिन 8 वालों के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। सो लेट्स वी आर गोइंग टू बिगिन। Chapter is structural and functional unit of life, and in this chapter we will talk about cell, its introduction, invention of microscope and discovery of cell. As you know well that invention is when very first time anything is bring among the people that is not available before, and discovery means the things are available but we don't know about them. Scientists bring us in front of us. Invention means जब कोई चीज़ पहली बार बनाई जाती है जो हमारे नॉलेज में नहीं होती है, उसको इन्वेंशन कहेंगे। और डिस्कवरी मीन्स वो चीज़ पहले से अवेलेबल है और सबके सामने लाई जाती है, तो उसको हम डिस्कवरी बोलेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी का। देन वी विल टॉक अबाउट सेल शेप्स and what is its functional requirement, why cell has different shapes. Then we will talk about unicellular and multicellular organism, cell structure, its essential parts, then cytoplasm. Then we will discuss transports across the cell membrane. In this we will talk about endoosmosis, exoosmosis, types of solution, plasmolysis. Then we will discuss cell wall, again the cytoplasm and the nucleus, and chromosomes, prokaryotic cells, eukaryotic cells, and finally protoplasm. This is the content of first part video, and later we will talk about cell organelles, difference between plant cell and animal cell, and quick recap of the lesson in part 2 video. So let's begin. We are going to begin. Introduction. What is cell? In class 8 you also studied that this one is the basic unit of life. We can say that smallest microscopic
basic unit of life that perform essential functions of life. मीन्स ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट है जो लाइफ के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी लाइफ प्रोसेसेज हैं, वो फॉलो करती है. In other words, we can say that this one is the fundamental, structural and functional unit of all living organism. And you know well that all the living organism start life as a single cell, and this is so small that we cannot see them with the naked eyes. That's why we required a special device to see them. That is the microscope. And to study about the cell, microscope play a vital role. First microscope was made by Antony van Leeuwenhoek. He was a Dutch scientist, and whatever microscope he used, that was a simple microscope because a single lens was used by them. Later on, Robert Hooke developed a microscope who used two lenses together to obtain enlarged view of microorganism. He discovered non-living cell as accidentally when he was sitting in his lab. He observed a thin slice of cork that was obtained from the bark of a tree. You know well that the bark is the dead parts of the plant, dead parts of the tree. He found a little compartment that was at that time it was known as cellula. Later he said that the cork was made up of cell. This was the concept of non-living cell. non-living cell की डिस्कवरी जो है एक्सीडेंटली हुई थी, जिसमें रॉबर्ट हुक अपने लैब में बैठे हुए कॉर्क को ऑब्जर्व कर रहे थे, या हम कह सकते हैं कि अचानक उनका ध्यान कॉर्क की तरफ गया होगा. उस समय बॉटल की कैप रिवॉल्विंग नहीं होती थी, कॉर्क की कैप होती थी जिसको वे लोग दबा कर बंद करते थे. तो उन्होंने उस पर लिटिल कंपार्टमेंट देखा, जिसको उन्होंने हर कंपार्टमेंट को नाम दिया सेल, एंड दिस वाज द नॉन लिविंग सेल. ये नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी थी 1665 में. नॉन लिविंग सेल रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया. इन लेटर आफ्टर 9 years, you can say in 1674, discovery of living cell was made by Dutch scientist, that was A.V. Leeuwenhoek. That living cell was bacteria, protozoa, RBC, etc. Then Robert Brown discovered nucleus in the cell. We will talk about the nucleus later. This one is known as control center of the cell. In 1839, Perkins was the scientist who coined the term protoplasm, and this was the living material of the cell. Whatever we will study about cell organelles, that study of cell organelles was possible due to discovery of electron microscope, and the scientist was Knoll and Ruska in 1940. And if we talk about magnification of electron microscope is 2 lakh times, where the
ordinary compound microscope magnify the object up to 2000 times. So electron microscope uses the beam of electron to magnify the microscopic things, whereas compound microscope use the simply natural source of light to enlarge the view only 2000 times. Next we will talk about cell theory, and this was the major discovery in this. Biologist like Matthias Leiden, he was a botanist. He suggests that every plant is made up of a large number of cells. In 1839, Theodor Skevan, who was the German zoologist, he declared that all animals and plants are made up of cells, and cells serve as the unit of structure and function. Later in 1855, Virchow suggests that all cells arise from pre-existing cells. These three informations together make the cell theory. 1838 में मैथियस लाइडेन के द्वारा ये कहा गया कि जितने प्लांट्स हैं सब मल्टी सेलुलर हैं, मतलब कि बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं. फिर 1839 में थियोडर स्केवान जो जूलॉजिस्ट था, उन्होंने डिक्लेयर किया कि नॉट ओनली प्लांट्स, न ही केवल प्लांट, एनिमल भी सेल से मिलके बने हुए हैं और सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. बाद में वर्चो के द्वारा ये कहा गया कि जो भी सेल्स हैं वो पहले से जो एग्जिस्टिंग सेल हैं उनसे वो उत्पन्न हुई हैं. सेल थ्योरी तीन मुख्य इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करती है. पहला है सेल सभी लिविंग थिंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट है. दूसरा है सेल सभी लिविंग थिंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है. मतलब कि इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो सेल की कंप्लीट डेफिनेशन बन जाती है. तीसरा जो आपको बताया गया कि सारी सेल्स पहले से उपस्थित सेल से उत्पन्न हुई हैं. और सेल थ्योरी वायरसेस के ऊपर लागू नहीं होती है, क्योंकि वायरसेस के पास में सेल जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है. हम लोग कह सकते हैं कि वायरस एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल शेप्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंस. क्लास 8 के बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं. सेल शेप्स में रेड ब्लड सेल की बात करेंगे तो सर्कुलर होंगे, बाइकॉनकेव होंगे, वी कैन से स्फेरिकल होंगे आरबीसी, जो आसानी से नैरो कैपिलरीज के थ्रू पास हो सकेंगे और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे. सेल की डिफरेंट साइज होगी, कुछ डिस्क लाइक होंगे, कुछ पॉलीगोनल होंगे, कुछ रेक्टेंगुलर होंगे, स्फेरिकल होंगे, क्यूबॉइड शेप के होंगे, थ्रेड लाइक होंगे, इरेगुलर शेप भी हो सकता है इनका. और ये अलग अलग शेप इनको अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करेगा. अब दो सेल ऐसे ही सेल की बात करेंगे जो अपना शेप हमेशा चेंज करते रहते हैं, जैसे कि वाइट ब्लड सेल और अमीबा. मीन्स दीज टू सेल्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, दे कैन चेंज देयर शेप as they need. Nerve cell is the longest cell, near about 1 meter. Muscle cells are also long, as their function is to contract and relax to perform different function. Guard cell is the bean-shaped cell to open and close the stomata.
Next we will talk about unicellular and multicellular organism. By words you know very well that unicellular means वे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही सेल से मिलके बने होंगे वे सब यूनिसेलुलर होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइमाइडोडास, ईस्ट एक्सेट्रा। और वे सारे ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल से मिलके बने होंगे उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जैसे कि फंगस, फंगी। फंगी इज द प्लूरल, फंगस इज द सिंगुलर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। Few celled organisms are also available, such as volvox, Spirogyra. They are made up of near about 1000 cells. So we can say that unicellular, multicellular, few celled organisms are also. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम दूसरे वर्ड में ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। नाउ सेल स्ट्रक्चर एंड एसेंशियल पार्ट्स। If we are talking about the essential parts of the cell, then we find that cell has three common parts such as cell membrane, nucleus and cytoplasm. If we carry nucleus and cytoplasm together, the term is given protoplasm. And outermost covering of the animal cell, that is the cell membrane. Inside the cytoplasm, number of organelles. Organelles means we can say microscopic little organ. So inside the cytoplasm, number of little microscopic little organs embedded, they perform a number of functions that make the cell as a living things. Next we are going to talk about transport across the cell membrane. We can say that there are two types of transport cell performs. One is the active transport and another is the passive transport. Active transport required energy and passive transport do not require energy. In passive transport there is osmosis, diffusion, facilitated transport, and in active transport there is endocytosis and exocytosis. Before going to talk about that how transportation take place, we will discuss about the cell membrane. As you know very well that the cell membrane is made up of lipid and protein. Each cell is surrounded by cell membrane as plasma membrane. Another name of cell membrane is plasma membrane. First of all, whether the cell membrane is allowing the material to move in or not. So cell membrane is selectively permeable as it allows the required material to move in. सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है इसलिए क्योंकि सेल को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है ये उन्हीं को अलाउ करते हैं आने के लिए। रिक्वायर्ड मटेरियल में सॉल्वेंट हो सकते हैं, सॉल्यूट भी हो सकते हैं। सेमी परमिएबल टर्म वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे मेम्ब्रेन सॉल्वेंट के लिए परमिएबल हो लेकिन सॉल्यूट को वो प्रिवेंट करे। और सेलेक्टिवली परमिएबल टर्म वहाँ पे होता है जहाँ पे मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को अलाउ करे और कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट भी अलाउ हो, वहाँ पे हम उनको बोलेंगे सेलेक्टिवली परमिएबल। नेक्स्ट इज whatever we talked earlier, that is the types of transportation, that is the active and passive transport. It was told to you. So we are moving on the next slide. First one is the endoosmosis and exoosmosis.
These two are the types of passive transport where endoosmosis is, for example, अगर हम प्रोटीन लेने के शौकीन हैं और चाहते हैं कि आसानी से प्लांट प्रोटीन हमको मिले, तो वी कैन चूज ग्राम, हम लोग ग्राम ले सकते हैं। रात में सोने से पहले हम उसको भिगो सकते हैं। सुबह में हमारे लिए चना जो है पूरी तरह से तैयार रहेगा, सोक्ड। हम नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि रात भर में वाटर जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गया, मतलब आपके बाउल से वाटर चने के अंदर इंटर कर गया। ये वाटर की ऑस्मोटिक एंट्री थी जिसमें वाटर सेल के अंदर इंटर कर गया, इसको हम बोलेंगे इंडोऑस्मोसिस। इसका ठीक उल्टा, अगर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हमारा चना सोक्ड हो गया, अब हम उसको चाहते हैं कि उसमें से वाटर को विदड्रा करें, तो हम एक कंसनट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन बना सकते हैं और सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे। सैचुरेटेड सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। तो हम एक कंसनट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन बनाएंगे और चने को हम उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। अब क्या होगा, अब चने का वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा जिससे चना वाटर लूज करेगा। इसको हम बोलेंगे एक्जोऑस्मोसिस। ये एग्जांपल आपका रेजिन के साथ भी हो सकता है, जो आपको इस स्लाइड में इमेज के थ्रू समझाया गया है। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट बाउल में स्वेलिन रेजिन है, जहाँ पे उसको रेजिन को वाटर में डाला गया था और बाद में वो स्वेलो कर गई। दूसरे वाले में आप साल्ट सोल्यूशन देख रहे हैं, जहाँ पे कंसनट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन है जिसमें स्वेलिन रेजिन या ग्रेप्स, आप दोनों पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड में एक्जोऑस्मोसिस हो रहा है जिसमें ग्रेप्स जो है श्रंकन हो गई है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड सेल प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को बात करना है 3 types of solution की। फर्स्ट वन इज द हाइपोटोनिक, देन लेटर वी विल टॉक अबाउट आइसोटोनिक एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट हाइपरटोनिक। सबसे पहले हम लोग हाइपोटोनिक सेल साइड सॉल्यूशन की बात करेंगे और सेल किस तरह से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बिहेव करती है इसकी भी बात करेंगे। तो फर्स्ट वन इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट होगा सेल के कंपेयर में, मतलब कि सेल के बाहर में वाटर का जो कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा सेल के अंदर के वाटर कंसंट्रेशन से। हम लोगों को पहले से पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में सेमी परमिएबल होती है, तो ये वाटर का पासेज जो है दोनों डायरेक्शन में करेगी और क्योंकि यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन डिफरेंस है, बाहर में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है जबकि सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल का जो नेट मूवमेंट होगा वो सेल की तरफ होगा और इसको हम लोग बोलेंगे इंडोऑस्मोसिस, जो अभी हम लोग बात किए थे। और इससे क्या होगा, सेल जो है स्वेलो कर जाएगी। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है जिससे एनिमल सेल ब्रस्ट कर जाएगी, जबकि प्लांट सेल ब्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास में सेल वॉल होती है। स्वेलन जो प्लांट सेल होते हैं उसको हम लोग टारगेट सेल कह सकते हैं और स्वेलिंग से एक प्रेशर सेल वॉल की तरफ अप्लाई होगा जिसको हम लोग बोलेंगे टर्गर प्रेशर, जो वाटर की एंट्री को अपोज करेगा। एक पर्टिकुलर टर्गर प्रेशर के बाद सेल के अंदर वाटर इंटर नहीं कर पाएगा।
तो ये था आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें आपको बताया गया कि इसमें इंडोऑस्मोसिस होगा, जिसमें सेल के बाहर जो वाटर कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा, और ऑस्मोसिस के द्वारा लिक्विड मॉलिक्यूल्स हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। इसके बाद है आइसोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें वाटर कंसंट्रेशन सेल का और सेल के बाहर का दोनों का वाटर कंसंट्रेशन लगभग इक्विलिब्रियम में होगा, जिससे कि जितना अमाउंट वाटर का सेल से बाहर जाएगा उतना ही अमाउंट वाटर का सेल के अंदर आएगा। और इस तरह से रिजल्ट जो होगा, नेट रिजल्ट जो होगा, देयर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, द साइज ऑफ द सेल विल रिमेन्स द सेम। रिजल्ट ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि क्योंकि दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो रही है, जितना वाटर सेल के बाहर जा रहा है उतना ही सेल के अंदर भी चला जा रहा है, जिससे कि सेल की साइज फिक्स रहेगी। और इस तरह के सोल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन, जहाँ पे सेल के अंदर का वाटर कंसंट्रेशन और सेल के बाहर का वाटर कंसंट्रेशन दोनों सेम रहेगा। इसके बाद है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जिसमें बाय वर्ड्स यू कैन कंसिडर, यू कैन अंडरस्टैंड हाइपर मीन्स दैट हाइपर वर्ड इज गिवन फॉर द सेल, मतलब कि सेल के अंदर का वाटर कंसंट्रेशन सेल के बाहर के वाटर कंसंट्रेशन से ज़्यादा रहेगा। सेल के अंदर का वाटर कंसंट्रेशन सेल के बाहर के वाटर कंसंट्रेशन से ज़्यादा रहेगा, जिससे कि सेल वाटर को लूज करेगी। और यहाँ पे जो होगा उसको हम बोलेंगे एक्जियोऑस्मोसिस। इसका रिजल्ट ये होगा कि सेल जो है श्रिंक कर जाएगी। इस टर्म को हम लोग प्लाज्मोलिसिस भी कहेंगे। आगे हम लोग प्लाज्मोलिसिस की बात करेंगे। एनिमल सेल में इसी टर्म को हम लोग क्रेनेशन बोलेंगे, क्योंकि एनिमल सेल में कंप्लीट सेल श्रिंक कर जाएगी हर तरफ से और ये रिंकल्ड अपीयरेंस देगी। एनिमल सेल में इसी फिनोमेनन को हम लोग क्रेनेशन बोलेंगे, जबकि प्लांट सेल में इस फिनोमेनन को प्लाज्मोलिसिस बोलेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्लाज्मोलिसिस, important for 9th standard. Most of the time it is asked for 1 marks. This one is the reversible process. रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग प्लांट सेल में अकर होता है, ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब प्लांट सेल से वाटर एग्जिट करता है और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर श्रिंक कर जाता है। आप डायग्राम में देखिए, पहली वाली जो सेल है आइसोटोनिक सोल्यूशन दिखाया गया है, जिसमें सेल मतलब कि नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर टेक प्लेस एंड सेल इज द नॉर्मल साइज एंड शेप। दूसरे वाले सोल्यूशन में देखिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, मतलब कि बाहर का जो वाटर कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर के वाटर कंसंट्रेशन से कम है, और इसमें क्या होगा, सेल वाटर को लूज करेगी और होगा एक्जियोऑस्मोसिस। एक्जियोऑस्मोसिस होने से ही क्या होगा कि सेल का जो इनर कंटेंट है वो श्रिंक करेगा सेल वॉल से दूर अंदर की तरफ, और इस तरह से इनर जो स्ट्रक्चर होगा सेल का, प्लांट सेल का, वो उसमें आपको डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसी को हम बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस। इस प्रक्रिया में हुआ क्या, इसमें यही हुआ कि सेल मेम्ब्रेन श्रिंक कर गई सेल वॉल से और इनर कंटेंट में डिफॉर्मेशन हो गया, जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस एनिमल सेल में अकर नहीं होता है क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उसको हम बोलते हैं क्रेनेशन। नेक्स्ट वन इज द सेल वॉल, वेरी इजी टर्म फॉर
class 8 students, 9 also. Cell wall is the outermost covering of the plant cell that is made up of cellulose. अगर फंगस की बात करेंगे तो फंगस में भी सेल वॉल होता है जो काइटिन से बना होता है, ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है. और बैक्टीरिया में अगर सेल वॉल की बात करें तो ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकैन का. सेल वॉल के होने से प्लांट, फंगस और बैक्टीरिया तीनों का एक डिफिनिट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा और ये रिजिडिटी भी शो करेंगे. सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होती है, मीन्स ये इट अलाउ एवरी मटेरियल टू मूव इन विदाउट हिंड्रेंस. ये सारे मटेरियल्स को, लिक्विड, सॉल्यूट, gaseous, all types of materials are allowed to move in. Next one is the cytoplasm. This one is the semi-liquid, means jelly-like substance that is present inside the cell, means inside the cell membrane. And if we observe it using microscope, it appears as a colorless, partially transparent and somewhat watery. से साइटोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ही जब भी हम किसी सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पहले उसको स्टेन करना होता है. आपको अच्छे से पता है कि प्लांट सेल को हम सेफ्रनिन से स्टेन करते हैं, जबकि एनिमल सेल को मेथिलीन ब्लू जैसे केमिकल रिएजेंट से स्टेन करते हैं. क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंट चीज़ें माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे नहीं, क्योंकि लाइट आसानी से एकरास आर पार हो जाएगा और हमको इमेज नहीं मिलेगी जो भी हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, प्लांट सेल या एनिमल सेल. साइटोप्लाज्म का अपना इम्पोर्टेंस है. ये जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सब साइटोप्लाज्म में ही होते हैं. जैसे कि आपका रेस्पिरेशन है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में. साइटोप्लाज्म सम मूवमेंट, मतलब कि कुछ ये बिकॉज न्यूट्रिशनल मीडियम भी है तो इसमें कुछ न कुछ मूवमेंट ऑब्जर्व होता है. साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन स्टेट ऑफ सम मूवमेंट. नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियस. As you know that brain is the control center of our body. In the same way, सेल में न्यूक्लियस जो है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है. ये सारे लिविंग प्रोसेस को कंट्रोल में रखता है और सेल डिवीजन के समय में भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. न्यूक्लियस जीन्स और जेनेटिक मटेरियल को भी होल्ड करता है. ये एक टीनी मास है जो एनिमल सेल में लगभग सेंटर में रहेगा और प्लांट सेल में पेरिफेरल पोजीशन में रहेगा. इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर अगर आप इमेज को ऑब्जर्व करेंगे तो एक डेंस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस का रोल है यहाँ पे राइबोसोम. न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनते हैं. सेल डिवीजन के समय में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं जिनको हम क्रोमेटिन फाइबर के नाम से जानते हैं. सेल डिवीजन के समय में ही ये क्रोमेटिन फाइबर थिक होते हैं और क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज द क्रोमोसोम. जेनेटिक मटेरियल that is responsible for transfer of character from parents to their offspring. जेनेटिक मटेरियल है जो कैरेक्टर को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है और इसी के होने की वजह से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स की तरह से दिखते हैं.
Here you can notice that number of chromosome in different living organisms such as potato 48, chimpanzee 48, monkey 54, chicken 78, dog 78, sugarcane 80. Here we are observing that number of chromosome in different living organism is the same, but they are totally different from each other because of location of gene on the chromosome. Genes are the carrier of the chromosome. Here in image you may notice about the centromere, that is the region where microtubule of the spindle shaped is attached via the kinetochore during the cell division. About the centrosome and centromere we will study later. Next one is the prokaryotic cell and eukaryotic cell. We can say that this one is the classification of cell on the basis of presence or absence of nucleus. If we are talking about prokaryotic cell, then by words we can consider like prokaryote means primitive nucleus, means nucleus is not well developed. At the place of nucleus, nucleoid like structure is found, and single chromosome are found, genetic material are scattered inside the cytoplasm in prokaryotic cell. And if you are talking about the cell organelles, then they are not double membranous. Example is bacteria, blue-green algae. If you are talking about eukaryotic cell, then हम इस तरह से समझ सकते हैं इसको कि न्यूक्लियस जो होगा वो कम्प्लीटली डेवलप होगा, सेल ऑर्गेनेल्स डबल मेम्ब्रेनस होंगे, क्रोमोजोम की संख्या एक से अधिक होगी. आगे हम लोग इसके बारे में डिफरेंस की बात करेंगे. यू मे सी हियर साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज स्मॉलर 1 to 10 micron, whereas the size of the eukaryotic cell is 5 to 100 micron. Nucleus is absent. At the place of nucleus, nucleoid is found. Genetic materials are free in the cytoplasm. In eukaryotic cell, nucleus is present and the covered genetic material are found. In prokaryotic cell, membrane-bound organelles are not present, whereas eukaryotic cell, membrane-bound cell organelles are present. आपको पहले से बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोजोम होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक से अधिक क्रोमोजोम पाए जाते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम होते हैं उनका साइज 70S होता है, मतलब कि स्मॉलर राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में लार्जर राइबोसोम पाए जाते हैं जिनका साइज 80S होता है. दोनों के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोकैरियोटिक सेल, whereas the fungi, protista, plants and animals are eukaryotic cell. Next one is the protoplasm. So if we look at the image that is given at the left side of the slide, you are noticing that cytoplasm plus nucleus is protoplasm. Means if we are taking together cytoplasm and nucleoplasm, inside the nucleus also some jelly-like materials are found, that is known as nucleoplasm. So if you are taking together cytoplasm and nucleoplasm, then whole the jelly-like materials of the cell is considered as protoplasm, and this one is the living substance of an organism. इसको हम लोग ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड की तरह से डिफाइन कर सकते हैं.
जो समव्हाट कलरलेस होगा, ग्रेइश या ब्राउनिश भी हो सकता है। केमिकल कंपोजिशन प्रोटोप्लाज्म का कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये एक सेल से दूसरे सेल में वेरी करता है। अगर हम कंपोजिशन की बात करेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन और फास्फोरस, ये सारे सेल्स में पाए जाएंगे, प्रोटोप्लाज्म के कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। और प्रोटोप्लाज्म का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होगा जो वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल साल्ट्स, इससे ये बने होंगे। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन, वाटर आल्सो। और इन simply, if we want to define protoplasm, then it is the living matter, total substance of a living cell, that is hold together cytoplasm plus nucleus. Thank you for watching this part 1 for class 8 and 9. Within few days, part 2 of this chapter, means structural and functional unit of life, whatever the cell organelles, difference between plants and animal cell, and quick recap of this lesson will be available for you. Thanks for watching, and till that your only work is to keep studying. Thank you.